کسبی ہے. اور اس کا نام آگے لکھا ہے کیا ہے سر؟ دلیلہ. دلیلہ دنیا داری کو دکھاتی ہے. یہ اصل میں اس کی طرف جانا یعنی دنیا داری کی طرف لکھ سکتا اور دنیا داری کے اندر یہ پھنس کے رہے. اب یہاں پر اس کے ساتھ اس کو اب روح کی کون سی نعمت کو استعمال کرنا تھا یہ وہ اس کی طرف دھیان نہیں کر رہا. بار بار وہ اس کو اکساتی ہے. وہ اس کے اوپر دباؤ ہے فلسطینوں کا. یہ تیرے پاس آتا ہے, ہم اسلام کا مقابلہ نہیں کر پا رہے, ہم اس کے زور کے آگے زیر ہو جاتے ہیں. تو اس سے اگلوا کہ اس کے پاس ایسا کیا ہے کہ ہم اس پر قابض نہیں ہوتے. ہم اتنے زیادہ کٹھے ہو کے بھی جاتے ہیں لیکن اس سے مار کھا کے آتے ہیں کہ ہمیں مارتا ہے. تو اسے پتا کر کہ اس کے زور کا راز کیا ہے. ہے تو یہ عام شخص لیکن اس کے پاس اتنا زور کہاں سے آ جاتا ہے کہ اتنی فوجیں بھی اس کے سامنے بے بس ہو جاتی ہیں. ہم اسباب برباد ہوتے ہیں لیکن یہ خالی ہاتھ ہم پر حملہ پر ہوتا ہے اور ہمیں ہلاک کر دیتا ہے. تو اس کو پریشرائز کیا گیا اس دلیلہ کو کہ تو اسے کھلوا, اس سے پتا کر کہ اس کے پاس ایسی حکمت کیا ہے. اس میں یہاں پر یہ دکھاتا ہے کہ کئی دفعہ ہم جانتے ہیں کہ ہم غلط لوگوں میں جانا شروع ہو گئے ہیں, ہم دنیا داری کے چکروں میں پھنسنا شروع ہو گئے ہیں. دنیا داری قابض ہو رہی ہے, ہم جانتے ہیں لیکن جان بوجھ کر ان کو ہلکا لے لیتے ہیں. اور میں کتنے کرنے کا اپنا آ گیا میں میرا بھی کر رہے ہیں اور میں بھی کوئی بات نہیں یار میں کو نہ آتا اور چھٹو جی صحیح میں نشے میں لا رہے. ایسی بات ہے ہمارے اندر ایک عجیب سا کپڑ پیدا کرتی ہے. تو یہ بار بار سوال کے پاس جاتا ہے, یعنی یوں کہہ لیجیے کہ بار بار دنیا داری کے کاموں میں الجھ جاتا ہے. اس کو نکلنا چاہیے تھا, اس سے بچنا چاہیے تھا کہ یہ دنیا داری مجھے برباد کر کے رکھ دے گی. میرے پاس تو خدا کا زور ہے, تو خدا کا روح ہے جس کے لیے میں چنا گیا ہوں. میں ماں کے پیٹ ہی سے خدا کا نصیر ہوں. تو میں نے وہ کام کرنے ہیں تاکہ دنیا داری میں پھنسنا ہے. تو یہ بار بار ہلکا ڈالتا ہے, بار بار عورت کے پاس جاتا ہے اور بار بار وہ عورت اس کو مجبور کرتی ہے کہ دیکھ تم مجھ سے محبت نہیں کرتا, تم مجھ سے پیار نہیں کرتا, تو ہمیشہ مجھے دھوکہ دیتا ہے, تو ہمیشہ مجھے اصل بات نہیں بتاتا بلکہ ہر دفعہ میرے ساتھ مذاق کرتا ہے. اور جب بھی تو جیسا کہتا ہے ہم میرے ساتھ ویسا کرتے ہیں تو تیرا زور تو ویسے رہتا ہے, وہ تو ٹوٹتا نہیں بلکہ الٹا وہ ہم پر ہی وہ آ جاتا ہے. تو سمسون نے پہلا کام جو کیا یہ ذرا سنا کی چاہا کہ پہلے آپ اس عورت نے اس کو کتنا مجبور کیا ہے. ہاں جی. اس کے بعد سورت کی وادی میں ایک عورت سے جس کا نام دلیلہ تھا اسے عشق ہو گیا, اور فلسطینیوں کے سردار نے اس عورت کے پاس جا کر اس سے کہا کہ تو اسے پھسلا کر دریافت کر لے کہ اس کی شہ زوری کا بید کیا ہے, اور ہم کیوں کر اس پر غالب آئیں تاکہ ہم اسے باندھ کر اس کو اذیت پہنچائیں, اور ہم میں سے ہر ایک 1100 چاندی کے سکے تجھے دے گا. اس عورت کو لالچ دیا گیا, اسے پتا کرو اس کے زور کا راز کیا ہے, اتنی قوت یا قدرت سے پاس کیسے ہے, وہ معلوم کر کے ہمیں کہا تاکہ ہم اسے وہ چھینے اور پھر اس پر حملہ کریں یا اس کو اپنے قبضہ میں لیں اور اس کو ماریں. اس نے اس سے کہا اگر وہ مجھے نئی نئی رسیوں سے جو کبھی کام میں نہ آئی ہو باندھے تو میں کمزور ہو کر اور آدمی کی طرح ہو جاؤں گا. پہلے اس نے کہا تھا کہ مجھے نا وہ کوئی چھڑیاں ہوتی ہیں بڑی مضبوط نا بالی, اس سے باندھو, وہ سوکھی ہوئی نہ ہو, وہ ہری ہری ہو. اگر اس سے مجھے باندھ دو گے تو وہ اسے نہیں ٹوٹے, اگر اس سے باندھ دو گے تو میں کمزور ہو جاؤں گا اور یہ مجھے آسانی سے پکڑ لیں گے, میں کچھ نہیں کر سکوں گا. تو اس نے وہ منگوائی, اس کو اچھے سے باندھا اور تو لوگ اسے چھپائے کہ اے سمسون
वो फलस्तीन तुझ पर चढ़ रहे हैं, अब बता दो क्या करेगा। तो ये उसी जोर से उठा, उन सारी वो जो पहले थी या डालियां थी, उसने उसको तोड़ दिया। वो भी इस पर उस तरह से काबिज ना हो सकी, इतनी मजबूत साबित ना हुई। इसने जोर पकड़ा था कि जैसे ही खुदा के कुदरत को मांगना, खुदा की रूह कसरत से जोर के साथ इसमें नाज़िल होगी और उनको तोड़ देगा। तो उसने फिर कहा कि तुम्हें फिर देखो मेरे साथ धोखा किया, फिर मुझसे झूठ बोला, फिर मुझे सही बात नहीं बताई, तो इससे काबू नहीं आया, मैंने उनको तोड़ दिया। फिर ये दूसरी बार हुआ कि इसने कहा कि मुझे नई रस्सियों के साथ, नई रस्सियां जो कभी इस्तेमाल में आई हो, उनके साथ अगर बांधा जाए तो फिर मैं उनके कब्जा में आ जाऊंगा, फिर मेरा जोर इस तरह नहीं लगेगा, इस तरह नहीं जाएगा कि मैं नई रस्सियों को तोड़ सकूं। तो वो हुआ, तो इस औरत ने वो रस्सियां मंगवाई नई, और उससे इसको मुंह बांधा और बांध कर कहा कि देखो फलस्तीन तुझ पर चढ़ रहे हैं, सुनो आप क्या करोगे। तो देखा उसने फिर उसी जोर के साथ उठा और वो रस्सियां जो नई थी वो सारी की सारी जले हुए सांप की तरह फूट गई। कोई रस्सी इस पर काबिज ना हो सकती, इसको बांध नहीं सकती। तो इसको समझ नहीं आ रही कि मैं क्या कर रहा हूँ। असल में ये वही बात है कि हम गुनाह से अलग नहीं होते, क्योंकि कई दफा हम उनके साथ खेलना शुरू कर देते हैं और देखते हैं कि गुनाह मेरा ही कर रहे हैं। आज सेना की टीम मेरा ही कर लेगी, एचवाई की टीम मेरा ही कर लेगी, बदकार की टोली मेरा ही कर लेगी, बदकार की टोली मैंने से लिया पहले। तो हम हल्के में ले लेते हैं, ये हल्के में ले रहा है, उससे अलग नहीं हो रहा। बार बार वो औरत उसे उकसाती है, उसे पूछने की कोशिश करती है कि तेरी इस कुदरत का राज क्या है। उसे अलग नहीं हो रहा, उसको समझ नहीं रहा, और बार बार उसके साथ खेलना शुरू कर देता है कि मुझे ये कर दो, मुझे जो कर दो, मैं ऐसे करूँगा, मैं ऐसे करूँगा। तो ये उस गुनाह से दूर नहीं हो रहा, उसे निकल नहीं रहा, बल्कि गुनाह के साथ करो, इसने खेलना शुरू कर दिया। अब यही इसकी मुसीबत की वजह बना है, यही उसकी बर्बादी की वजह बना है कि ये उससे अलग नहीं हुआ, बल्कि उसके साथ फंसना ही चला गया, उससे निकला नहीं। और एक वक्त ऐसा आया कि उस औरत ने ऐसा इसको अपनी बातों में फंसा लिया, ऐसा अपनी चक्कर में ले गई उसको, इसने अपना वो राज उगल दिया। So दलीला सैमसन से कहने लगी, अब तक तूने मुझे धोखा ही दिया। जब देखो ये औरतों का एक ट्रैक है ना, कि उसको कैसे फंसाना है, वो लोग को घर देना है, उसको प्यार करना, मुँह देना, और सबसे रिश्तेदार नहीं है, मेरे सच्ची बात करना है। ये ऐसे ना, ये वो बातें हैं जिनसे इंसान ना मुतासर हो जाता है, फिर कह देता है कि हाँ यार ना पढ़े। अब तू बता दे कि तू किस चीज से बन सकता है। उसने उससे कहा, अगर तू मेरे सर के सातों लिटे। आ गया पॉइंट। आप बोल दिया ऐसे, पहले नहीं बता रहा था कि लिटों के अंदर है। अब उस औरत ने ऐसी बातों में फंसाया है, अब ये बोलना शुरू कर दिया कि मेरी असल पावर कहाँ है। जी, सातों लिटो ताने के साथ बूंदे। तब उसने खूंटे से उसे कस कर बांध दिया और उससे कहा, सैमसन फिलिस्ती तुझ पर चढ़ आए। तब वो नींद से जाग उठा और बलि के खूंटे को ताने के साथ उखाड़ डाला। अब देखो असल पॉइंट पर ले रही है वो औरत, यानी दुनियादारी ने इस ऐसा फंसाया है कि अब ये अपना राज बोलना शुरू हो गया है। तो यही होता है हमारे साथ, जब हम गुनाह से अलग नहीं होते तो अपना राज बोल देते हैं। हमारे दिलों और गुर्दों को जांचने वाला हमारा खुदा है, शैतान नहीं जानता, शैतान नहीं जानता, खुदा जानता है। लेकिन जब हम वो बातें अपने मुंह पर ले आते हैं, अपनी जुबान पर ले आते हैं, तब शैतान जान जाता है। वो पहले नहीं जानता था किसी कुव्वत और ज़रूरत कहाँ है, लेकिन अब इसने मजबूर कर दिया कि वो उसको बताया, उसने बता दिया कि मेरे लड़कों के अंदर मेरी सारी ज़रूरत। तो अभी भी खुदा ने इसको फिर मौका दिया, इसने अपने लड़के को दबा ली उनसे कि यहाँ से मुझे बांध दो। जब उन्होंने वहां से बांधा तो फिर इसने खुदा के जोर से उनको भी तोड़ दिया, आजाद कर दिया, क्योंकि लड़े अपनी शर्तों को जुड़ी थी, वो उतारी नहीं गई थी। बेशक राज बता दिया है, लेकिन अभी उस
उस रूह को जाने नहीं दिया, अभी मौजूद है। तो खुदा के जोर को फिर मांगा और फिर वो सारे उसने तोड़ दी जिसे माना गया था, वो इसके जो भी था इसने वो तोड़ दी। अब वो और फिर आप इसके बाद तो देखो सब सुनो तो फिर सारा गुजारने की बात आते हैं लगाने से बने हैं कुछ नहीं। फिर आप पहली आयत में वापस करते हैं जो 16 की आपने 19 आयत पढ़ी थी उसी पर वापस करते हैं। अब इस औरत ने उसके साथ किया गया, जब उसने ये कह दिया तो उसने कहा कि इनको मूड़ दिया जाए मेरे सर से, इनको मेरे सर से उतार दे, यानी टेंट काट दे। अगर वो कर दोगे तो फिर मेरी क्रोध या मुझसे चली जाएगी, हो जाती रहेगी, क्योंकि मैं जब से पैदा हुआ हूँ मुझे जो हुक्म का खुदा की तरफ से मेरे सर को उस तरह नहीं चलेगा, नहीं फिरेगा। तो चूंकि मैं खुदा के हुक्म के अंदर हूँ उस तरह नहीं लगा मेरे सर पर, अगर उस तरह लग जाएगा ये नटे उतार दी जाएंगी तो फिर मेरी मुश्किल जाती है। 16 तब उसने उसे अपने जामों पर सुला लिया और एक आदमी को बुलवाकर सातों लिटे जो उसके सर पर थी मुंडवा डाली। अब कैसी की नींद है कि उसके सर पर उस तरह फेरा जा रहा है लेकिन वो सोया है। ये क्या हो गया है? असल में ये हमारी आज की हालत को दिखाता है। हम भी आज गफलत की नींद में सोए हुए हैं, हमारी लटे हमारे सर से उतारी जा रही हैं, हमारी हिम्मत हमसे छीनी जा रही है, हमारी रूह हमसे छीनी जा रही है, उसको हम निंदा किए जा रहे हैं, लेकिन गफलत की नींद से हम जाग नहीं। वो गहरी नींद सो गया, नींद इतनी गहरी होती उसकी लटे उतारी जाए और उसको होश ना है, लेकिन ये हमारी हालत को दिखाता है। अफराज में लिखा है गफलत हमारी निंदा देने से सुता ना रह जाए, दीदी के तौफीक को खुदा ने चंगे कर कमाई, कीड़े गले पता नहीं कोई शाम को जाता नहीं। तो गफलत की नींद से जागो, यीशु ने बार कहा कि जागो और दुआ करो। क्या हम जागते नहीं हैं? हम तो जागते हैं, लेकिन जो जागना यीशु कह रहे थे वो नहीं जाग रहे, वो रूह की बेदारी का बेजारी नहीं आ रही जिंदगी में, इसीलिए गफलत की नींद सोए हैं। देखने को हम जाग रहे हैं लेकिन खुदा की निगाह में हम सोए हुए हैं, इसलिए उसे कहना पड़ता है कि जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। ये पड़ा है आजमाइश में, ये सो गया है, इसीलिए सर की जगह मुंडवा बैठा है। वो कुव्वत को हिम्मत को वो सारा कुछ अपना गवा बैठा है, गफलत की नींद में सोया है। पौलुस ने लिखा है इफिसियों के खत में 4:5 में कि ऐसे होने वाले जाओ, 5:14 में ऐसे होने वाले जाओ और मुर्दों से जी उठ तो खुदा का नूर तुझ पर चमकेगा। तो मैं नहीं समझता कि हम सारा दिन या सारी रात सोए रहते हैं, क्योंकि सोना किसी और का इशारा है, ये गफलत की नींद का सोना है, खुदा के कलाम से दूर होना है। तो बारह हमें हुक्म है कि जागो और दुआ करो। ये सो गया, गफलत की नींद सो गया और उसने उसकी लटे उतार दी। जब लटे उतर गई, सर मुंडा दिया, खुदा के हुक्म की हुक्मदूरी हो गई, उस तरह सर पर उठा बैठा तो निकल उसी जोर से उठा। नहीं जानता था कि खुदा का रूह मेरे पास नहीं है, वो कुदरत मुझसे अलग हो गई है। वो उसी जोर से उठा, इसी गलतफहमी ने कि अभी भी मैं उसी जोर से ही काम कर सकता हूँ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एक लिमिट है ना खुदा की, आपको बर्दाश्त करने बार बार मौका देता है कि जाग जाग जाग, लेकिन जब नहीं जाग तो सो अपनी मर्जी। जब तुमने उस हिकमत को उतरवा बैठा है, मेरे रूह को भी रचीदा कर दिया है, मेरे इस कुव्वत और कुदरत को भी अपनी जिंदगी से निकाल बैठा है, तो क्या मुकाबला वो मिलता है। ये तो मैं बड़ी पॉइंट में पढ़ना चाहता हूँ। 25 है।
16-25। और ऐसा हुआ कि जब उनके दिल नहायत शाद हुए तो वो कहने लगे कि समसून को बुलाओ। फिर उसने कहा, ऐ समसून, फिलिस्ती तुझ पर चढ़ आए। और वह नींद से जागा और कहने लगा कि मैं और दफा की तरह बाहर जाकर अपने को झटकूंगा, लेकिन उसे खबर ना थी कि खुदावंद उससे अलग हो गया है। तो लिखा उन्होंने पहला काम किया, सबसे पहले उसको आगे पकड़ा, पहले इसी बात करना ऐसे ही लड़े लग हुई जब सारा पड़े पैसे इसका, तो लिखा वो सबसे पहले काम उसको आगे पकड़ा, और पकड़ने के बाद तो पकड़ने से आसान नहीं था, लेकिन वो पकड़ा गया और देखो तमाम है। जब पकड़ा गया तो लिखा उन्होंने सबसे पहला काम किया, उसकी आंखें निकाली। जब आंखें निकाल दी जाए तो कुछ दिखाई नहीं देता। कहने को हमारे पास आंखें हैं, लेकिन शैतान ने हमारी वो आंखें छीन ली हैं कि हमें कुछ दिखाई नहीं दे। हम सब कुछ देखते हुए भी अंधे हैं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि वो उसने आंखें ही छीन रखी हैं। तो इसकी आंखें छीन ली, आंखें छीन गई, और लिखा है इसको पीतल की जंजीरों से उन्होंने बांधा। आमतौर पर लोहे की, लेकिन इसके लिए पीतल की मंगवाई गई, जो मजबूत ज्यादा होती है, जो हर वक्त चमकती रहती है। आंखें निकाल दी गई हैं, बांधा गया है पीतल की जंजीरों के साथ, और कैद में इसको रखा गया है, और इसे चक्की पिसवाई जा रही है। जो दुनियादारी में फंसेगा, खुदा के रूप में जिंदा करेगा, तो खुदा भी उससे अलग हो जाएगा। तो चक्की देखिए, हम सब ने वापस चक्कियों के दिल घुमाओ यहाँ, यानी चक्की भी एक ऐसी हमारी जिंदगी को दिखाती है कि हम घूम फिर के पूरा चक्कर काट के फिर वहाँ, फिर घूम फिर के चक्कर काट के फिर वहाँ। तो चक्की भी हमारी दुनियादारी की सारी नकलो हरकत को दिखाती है। तो उस चक्की के उस दायरे से हम निकल नहीं पा रहे थे, घूम फिर के फिर वहीं, घूम फिर के फिर वहीं। अब उसे चक्की में सो गया, और हुआ क्या, अब आगे बात करते हैं। हुआ ये कि उन्होंने कहा कि यार उसको बुलाओ, वो तो कैद में तो बड़ा जोरावर था, बड़ा हम पर उसका खौफ तारी था, क्या बच्ची सो गई, तो इसका उन्होंने तमाशा बना के रख दिया। और ऐसा हुआ कि जब उनके दिल नहायत शाद हुए तो वो कहने लगे कि समसून को बुलाओ कि हमारे लिए कोई खेल करे। अब देखो, जिसका खौफ था, जिसके नाम से कांपते थे, जिसको बड़े जोर लगा के बड़ी प्लानिंग करके उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते थे, अब उनके सामने वो तमाशा करने लगे। यार उसको बुलाओ, वो खेल करे, वो तमाशा करे, वो तमस्करा बना के रख दिया। सौल ने समसून को कैद खाना से बुलवाया और उनके लिए खेल करने लगा, और उन्होंने उसको 2 सतूनों के बीच खड़ा किया। तब समसून उस लड़के से जो उसका हाथ पकड़े था कहा, मुझे उन सतूनों को जिन पर ये गर्द कायम है थामने दे। अब देखिए कितना जोरावर था, लेकिन अब एक बच्चे से मदद मांग रहा है। अगर साड़ी बच्चे नहीं जाती उस अन्य हो जाएंगे, जो खुदा के भूतों से खाली हो जाएंगे, तो छोटे-छोटे बच्चों ने मदद मांग दी, ऊपर डाल काम करता है। ऐसी हालत हो जाती है, बच्चों का मुहताज होकर रह जाते हैं। बस काफी था, अभी इसने मौत तक खुदा का नज़ीर था, तो खुदा ने अब कैद खाने के लोग लड़े फिर से उठाई, तो लड़े फिर को बात फिर हो गए, पर इसको ने ध्यान नहीं दिया, ऐसी कुव्वत फिर आना शुरू हो गई है। अब इसने खुदा के सामने दुआ की, और खुदा से कहा कि मुझे एक दफ़ा, सिर्फ एक दफ़ा मुझे मेरा वो जोर अपनी कुदरत को उसमें नाज़िल कर दे, ताकि मैं खुद भी इन्हीं के साथ अपने आप को सुना। तो खुदा ने इस दुआ को सुना, उसने फिर वो जोर दिया, और वो सुकून जिनको वो सारा घर खड़ा था, उस सुकून
दोनों के साथ बच्चे की तरफ से गया और उसने पूछा कि वो सुनो जिस पर ये सब टिके हुए हैं मुझे उनके पास आना था। उसने वहाँ पर खड़ा किया, जब खड़ा हुआ तो खुदा के जोर को मांगा, खुदा का जोर नाज़िल हुआ और उसने से दोनों को पाया, खुद भी उन्होंने दबकर मर गया और सारे 3,000 वो भी वहीं पर हलाक हो गए। और इस तरह से खुदा का बड़ी कुदरत वाला बंदा, इसके पास खुदा का कामिल रूप था, इस तरह से उसका अंजाम हुआ। हम सबों को सीखने की जरूरत है कि हम बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी कमाई के साथ, बड़े खुदा के मार्फत जो हमारे पास है, जो सीखने वाली बातें हैं, उनके साथ अपनी जिंदगी गुजारें। खुदा की कुव्वत को बेकार कामों में इस्तेमाल न करें, बल्कि इससे खुदा के लिए लोगों को आमीन। आज उन्होंने अपने ऊपर मैसेज दिया है नजीर को मैंने अलग किया हुआ, एक तरफ रखा हुआ, किसी के साथ मिक्स ना हो जाए। और ये शब्द भी गुनाह में मिक्स हुआ, जिस तरह नदियों के पास या दरियाओं के पास अलग से दरख्त लगे हुए होते हैं साइड पर, जब कभी वो गिरते हैं तो वो पानी में बह जाते हैं। इस तरह खुदा का कलाम हमें ये कहता है, इब्रानियों 6 बाब और इसकी 4 आयत में लिखा है, क्योंकि जिन लोगों के दिल एक बार रोशन हो गए और वो आसमानी बख्शिश का मजा चख चुके और उन कुदरत में शरीक हो गए और खुदा के उनका कलाम और आइंदा जहां की कुव्वतों का जायका ले चुके, अगर वो बर्गश्ता हो जाएं तो उन्हें तौबा के लिए फिर नया बनाना नामुमकिन। ऐसा ही समझो के साथ आमीन। तो वो आसमानी चीजों का जायका ले चुका था। एक हड्डी से 1000 बंदा मार देना, शेर के जबड़े को छीन देना, इस आसमानी ताकत के साथ ही सारा कुछ हो सकता है। और वो कुदरत काम कर रहा था और आसमानी चीजों का जायका वो ले चुका। अब वो गुनाह में गिर गया और उसका फिर वापस आना नामुमकिन। खुदा के कलाम में लिखा है, दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए। मेरे जीवन में